Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Are you hearing me? Voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is clear. I am along with my Chief Judicial Magistrate, my Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, and our Senior Additional District Session Judge, Pushpendra Kumar. Greetings from our side to all of you. We have included all our PNVs in this program, and we have sent the link to them. They are also linked to this program. We will be discussing with Juvenile Justice Board. Before proceeding to that chapter, I would like to say that we have to understand the environment principles and the background in which the Juvenile Justice Board is required to act. We have a fundamental law, the Constitution of India, and it specifically have several provisions regarding children, like Article 15, Subclause 3, empowers the state to make special provision for protection of the child. We have directive principle of state policies, especially providing for the health of the children and the obligation of the state to provide their care and education to the children. We all know that right to education and right to health are the fundamental rights. So in this background, when the child is there, when the juvenile is there, whom we call the children in conflict with law, when they commit the crime, then we have a very special responsibility. In addition to these basic principles, to protect and correct the reports that have कृपया been अपने माइक्स म्यूट कर लें और बाकी जो ऑडियंस हैं पार्टिसिपेंट्स हैं अपने माइक्स म्यूट कर लें आप थैंक यू सर आप कंटिन्यू करिए सर yes, we have a special responsibility to correct the records that has been adopted by that particular delinquent child. In this respect, I also want to point out that why this emphasis on child beside these constitutional provisions. In recent times, it has been observed that the crime rate by the children in conflict with law has increased substantially. We also know that 40 to 48% of our population are children. So the state as a welfare state has a special responsibility to take care of these children. इन सारी बैकग्राउंड में क्योंकि हमारे ग्रास रूट लेवल के भी वर्कर्स इसमें एसोसिएटेड है, तो आई विल बी स्पीकिंग नाउ इन हिंदी. इस सारे सर्कमस्टांसेस में जे बोर्ड का जो फंक्शनिंग है वो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. मैं सेक्शंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज ना करते हुए उसके कंपोजिशंस और जो उसके फंक्शंस हैं उस पर एम्फेसाइज करूँगा, और जो हमारी एक्चुअल फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टेट है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री इज आल्सो इन्वॉल्व, सो वी वुड लाइक कि वो करेक्शनल मेजर्स आए वहाँ पर और हम लोग और अच्छा बेटर कर पाए, और जो हमारी ऑब्लिगेशन स्टेट ने हमें दी हैं उनको हम पूरा कर पाए. तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कंपोजिशन है, उसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट इज अ जुडिशियल ऑफिसर, ही इज अ legally qualified person. The two other persons, one of them has to be a woman, are from the social background, those who have worked in children welfare, those who are psychologists. They have added one other qualification or law. We, while functioning in the Juvenile Justice Board, JJ board I will call, ये हम लोगों ने देखा है कि अगर दो मेंबर, प्रिंसिपल जज तो लॉ फील्ड से है ही, एक अदर मेंबर भी लॉ फील्ड से आ गया, तो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो बच्चे के लिए जेजेबी से एक्सपेक्टेड है वो हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक वैक्यूम हो जाता है. एक सोशल बैकग्राउंड का हो गया, साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है नहीं, लीगल फील्ड के हमारे पास दो लोग, तो ये इस एक्ट में
लॉ को इंक्लूड करके एक जो फील्ड था वो डेफिशिएंसीज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। जेजे बोर्ड का जो फंक्शन है वो बहुत ही राउंड अबाउट है। जेजे बोर्ड सब जितने भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के जो सब पार्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको रिएक्टिवेट करता है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है, सबके साथ कोलैबोरेट करता है और सबके फंक्शन को सुपरवाइज करता है। जेजे बोर्ड के जो पिवटल रोल में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका नेचर किस तरह का है। ये प्राइमरली एक एडजुडिकेटरी बॉडी है, ये निर्णय देती है जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, लेकिन ये एक कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट का प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करते। ये हमारे यहाँ समन और समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, उसको अपनी इंक्वायरी में, जिसे हम जांच कहते हैं यहाँ पर, उसमें ये जेजे भी अपना अडॉप्ट करती है। इसके प्रोसीजर में कोर्ट सेटिंग बिल्कुल नहीं होनी है। बच्चों को ये फील होना है कि दे आर वेरी कंफर्टेबल देयर, और कोई भी पुलिस ड्रेस में नहीं आनी है वहां पर, और कोई भी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म नहीं देना है हम लोगों को। ये सारा इसलिए किया गया है ताकि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आर प्रोटेक्टेड, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, उसे वही एनवायरनमेंट देते हुए, वही चीजें लाते हुए, पर बच्चा सेफ सिक्योर फील करे और उसका जो ट्रीटमेंट है, जो जुडिशियल ट्रीटमेंट है, वो वहां पर दिया गया। ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम सिर्फ इंक्वायरी करना ही नहीं है। इसका काम शुरू जब बच्चे का अरेस्ट हो, बच्चे को जब एप्रीहेंशन होता है, एप्रीहेंड करते हैं, जब उसको लेते हैं पुलिस उसके अपनी कस्टडी में, तब से ही जेजे बोर्ड का काम स्टार्ट हो जाता है। जेजे बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है सारी अथॉरिटीज को। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो जेजे बोर्ड के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई सोशल वर्कर्स अपनी रिपोर्ट्स टाइम से नहीं दे रहे हैं तो ये जेजे बोर्ड का काम है कि वो 15 दिन में उनकी रिपोर्ट वहां सिक्योर करें। जेजे बोर्ड का जो प्रोसीजर है वो इंटिमिडेटिंग नहीं होना है उसके लिए। एक और लॉ के एंगल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जेजे बोर्ड का जो प्रोसीजर है वो एक्सक्लूसिव प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर से, इसी कार्रवाई के दौरान सारे कार्य होने हैं। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दूसरे लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ये विशेष अधिनियम है। इस विशेष अधिनियम के प्रावधान ही इस पे लागू होते हैं। जेजे बोर्ड दो प्रिंसिपल पे बेसिकली काम करता है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है, वो जेजे बोर्ड का परम कर्तव्य है। फिर जेजे बोर्ड का ये काम है कि वो उसको चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपनी सेटिंग में दे, अपनी कार्यवाहियों में दे। इसका जेजे बोर्ड का जो उद्देश्य है, कोर्ट की तरह कोई सजा देना नहीं है। जेजे बोर्ड का काम है बच्चे को करेक्शन, बच्चे में करेक्शन करना, बच्चे की हेल्थ, एजुकेशन, उसका होलसम डेवलपमेंट का ध्यान रखना, और उसका ध्यान रखते हुए उससे जो अपराध हुआ है उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसकी एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाना। उसका काम उस बच्चे के बारे में निर्णय लेने से ही समाप्त नहीं होता, उसके बाद जारी रहता है जब उसकी रिहेबिलिटेशन प्लान बनाते हैं वो, और जो सोशल सेक्टर की सर्विसेज हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब भी जेजे बोर्ड को उन्हें सुपरवाइज करना होता है, उन्हें देखना होता है। जेजे बोर्ड के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ जेजे बोर्ड इंटरेक्ट करता है। अब उसकी हम अगर सेक्शन 8 है जेजे एक्ट का, जहाँ पर सारे मैंने डायरेक्टली आ गया, आप अपना बंद कर दीजिए। मैंने इन ड्यूटीज को कुछ कैटेगराइज किया है। कुछ जेजे बोर्ड की बड़ी फंडामेंटल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे बड़ी ड्यूटीज इसकी ये है कि वो जेजे बोर्ड का अपना एनवायरनमेंट बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते बनाए, प्रोसीजर
ये अपनाएं जो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, बच्चे के होलसम डेवलपमेंट में हो, बच्चे के रिहेबिलिटेशन ओरिएंटेड हो। जितनी भी इंक्वायरी बच्चे के बारे में जब जेजे बोर्ड करेगा, तो जेजे बोर्ड की ये ड्यूटी है कि वो ये देखे कि कहीं पुलिस से या प्रोबेशन ऑफिसर से या जेजे बोर्ड के बाहर या अंदर उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो बच्चे का नहीं हो रहा है। और अगर वो ऐसा पाता है तो कंप्लेंट पर एक एफआईआर भी दर्ज करा सकता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट पे भी जेजे बोर्ड एफआईआर दर्ज करा सकता है। यही इसी पॉइंट पे मैं ये पॉइंट आउट करना उचित पाता हूँ कि यहाँ पर परिवाद पर ही जेजे बोर्ड को एफआईआर कराने की पावर दी हुई, क्योंकि बच्चा कराने की स्थिति में नहीं होता, उसको उतनी लीगल फैसिलिटी अवेकनिंग नहीं होती। तो यहाँ पर ये डेफिशिएंसी लॉ में हम लोगों ने महसूस की है कि जेजे बोर्ड को, जैसे हमारे दूसरे क्रिमिनल कोर्ट्स को स्वयं संज्ञान लेने की शक्तियां हैं, वो जेजे बोर्ड को शक्तियां नहीं दी गई। अगर उसके पास कंप्लेंट नहीं आई है तो वो स्व मोटो अपने आप स्वतः ही कार्रवाई करने में अक्षम है। लेकिन ये एक पावर जेजे बोर्ड ने दी है कि अगर शिकायत आती है तभी वो कार्रवाई कर सकता है। जेजे बोर्ड की सबसे बड़ी ड्यूटी एक ये भी है कि वो जो सुनवाई करे उसमें बच्चा और उसके माता पिता पूर्ण रूप से सूचित हो और वो उसको भागीदार बने। इसकी एक्ट की स्कीम में पेरेंट्स पर भी फाइन करने की पावर जेजे बोर्ड को दी। उस दृष्टि से ये बहुत जरूरी है कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, बच्चे का जो केयर टेकर है, वो उस पार्टी में, उस प्रोसीडिंग में, उस कार्रवाई में भाग ले। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन। ये सिर्फ खड़ा होने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें अपने राइट, इंटरेस्ट और जो सर्कमस्टांसेस बच्चे के अगेंस्ट आ रहे हैं उनमें कहने का मौका मिलना चाहिए। कुछ जेजे बोर्ड की प्रक्रियात्मक जिम्मेदारियां हैं। लाइक अगर बच्चे को विधिक सेवाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कानून से वास्ता पड़ रहा है, अपराध हो रहा है कोई, तो वहां पर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देने का ही दायित्व जेजे बोर्ड का है। जेजे बोर्ड का ये भी दायित्व है कि अगर बच्चा या उसके माता पिता उसकी कार्रवाइयों को नहीं समझ रहे हैं या अपनी बात कहने में अक्षम है, तो उनको ट्रांसलेटर दें, उनको इंटरप्रेटर उपलब्ध कराएं। जेजे बोर्ड का ये भी दायित्व है कि बच्चा किसकी कस्टडी में रहेगा, किसकी देखरेख में रहेगा, उस फिट पर्सन की को निश्चित करना भी जेजे बोर्ड का ही काम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर जेजे बोर्ड में दी गई है कि कई बार माता पिता नहीं होते या माता पिता अक्षम है, तो फिट पर्सन कौन होगा, ये भी जेजे बोर्ड ही निर्धारित करता है। जेजे बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि इसका काम सिर्फ बच्चा जब प्रोडक्शन होता है तब से शुरू नहीं होता, बल्कि जब बच्चे को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब से ही शुरू हो जाता है। जब इंक्वायरी होती है तब होती है, और जब बच्चे को दोषित मान भी लिया जाए तो उसके बाद भी उसकी रिहेबिलिटेशन प्लान बना करके उसका इम्प्लीमेंटेशन तक इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द, जो हमारा सेंट्रल प्रिंसिपल है, उस पर रहती है। जेजे बोर्ड की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सप्लीमेंट करने की, उनको असेस करने की, उन पर सुपरविजन करने की। लाइक अगर सोशल वर्कर रिपोर्ट नहीं आती है तो जेजे बोर्ड 15 दिन में इनसे रिपोर्ट मंगाने के लिए उत्तरदायी है, जिससे कि उसकी क्वेरी में विलंब ना हो। जेजे बोर्ड जेल का रेगुलर इंस्पेक्शन करने की भी जिम्मेदारी है, जिससे कि ऐसा ना हो कि रेगुलर जेल में बच्चे हार्डन क्रिमिनल के साथ अगर पाए जाते हैं तब उनका सेग्रीगेशन करने की जिम्मेदारी जेजे बोर्ड पर ही होती है। जेजे बोर्ड की जिम्मेदारी जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है, जो अब आजकल इस प्रेजेंट एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई है, उनका इंस्पेक्शन करना, उनमें डेफिशिएंसी है उनके लिए लिखना, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड और होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए, वो भी जिम्मेदारी रेजिडेंशियल फैसिलिटी को इंस्पेक्ट कर उन पे इम्प्लीमेंट कराने की जेजे बोर्ड की है। जेजे बोर्ड की ये जो जेजे एक्ट है, इसमें दो बातों में, दो बच्चों में विभेद किया गया।
चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो बच्चे जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाते हैं। तो ये जे बोर्ड का दायित्व है कि वो डिटरमिन करे कि अगर बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जाने लायक है तो उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को ट्रांसफर करें। जे बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसमें जे बोर्ड के ऊपर ये दायित्व की निर्धारित किया है विधि ने कि वो एक निश्चित समय सीमा में उसके सामने आई हुई इंक्वायरी को पूर्ण करे। लाइक 3 तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ क्राइम बच्चों के डिवाइड कर रहे हैं। एक बहुत ही पेटी ऑफेंसिव जैसे हम लघु अपराध भी कहते हैं, दूसरे कुछ गंभीर अपराध होते हैं और कुछ हीनियस अपराध होते हैं। एक शिल्पा मित्तल के केस में सुप्रीम कोर्ट में एक बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करते हुए ये भी कहा है कि अगर जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं वो 3 साल से कम के होते हैं, 3 साल से 7 साल तक के बीच के सीरियस ऑफेंस हैं, मोटा मोटा ऐसे करके डिमार्केशन किया हुआ है, और 7 साल से ऊपर वाले हीनस ऑफेंसेस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर व्याख्या करते हुए ये निर्धारित किया है कि अगर किसी अपराध में 7 साल से ऊपर की सजा भी का भी प्रावधान विधि में दिया हुआ है, लेकिन उसमें न्यूनतम सजा नहीं दी हुई है, न्यूनतम सजा 7 वर्ष तक निश्चित नहीं की गई है, तब भी वो सीरियस अपराध की कैटेगरी में है। और ऐसे अपराध भी जिसमें भले ही सजा 7 साल से ऊपर की है लेकिन न्यूनतम 7 साल निर्धारित नहीं किया है, तब भी वो जे बोर्ड के ही जुडिक्शन में आएगा और सीरियस ऑफेंस हम उसे कंसिडर करेंगे। तो इन सब केसेस में इंक्वायरी विद इन ऑब्लिगेशन है कि 4 मंथ में करें, और अगर 4 मंथ में इंक्वायरी पूरी नहीं कर पाता है तो फिर उन्हें लिखित में बोर्ड को लिखना होता है कि हम इस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, और फिर 2 महीने की और उनको टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें फाउंडेशन एक ये भी है कि अगर 6 महीने में कोई इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तब बोर्ड पे ये भी जिम्मेदारी है कि पेटी ऑफेंसेस में इन प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करें। ऐसे ही जे बोर्ड को एक हीनियस ऑफेंसेस के बारे में ये निर्धारण करने की शक्तियां दी हुई है कि क्या जिस बच्चे ने जो 16 से 18 वर्ष की, ये निर्भया जो कांड दिल्ली में हुआ था और जब जे 2015 बना तब ये हीनियस कैटेगरी एक सोशल रिवोल्यूशन के तहत यहाँ पे लाई गई। लेकिन इसमें जे बोर्ड में ही ये शक्तियां दी गई है कि वो इन अपराध का प्रकृति, परिस्थितियां, बच्चे की मानसिक शारीरिक क्षमता अपराध करने की, सब बातों का ध्यान रखते हुए निर्धारण करें कि क्या उसका जो विचारण है वो श्रम करे या वो एक चिल्ड्रन कोर्ट में भेजे। 2021 में सेक्शन 18 में संशोधन करके ये शक्तियां भी जे बोर्ड में दे दी गई है कि वो ये भी उसको शक्तियां है कि वो इन हीनियस ऑफेंसेस में स्वयं भी निर्धारण कर ले और चिल्ड्रन कोर्ट को ना भेजे। तो ये जे बोर्ड की और जिम्मेदारियां हैं कि वो जो इंक्वायरी करेगा वो फेयर ट्रायल करेगा और स्पीडी करेगा। जे बोर्ड को ये भी पावर है कि वो इंक्वायरी के टाइम ये पा जाए कि बच्चे ने कोई अपराध ही नहीं किया है, ही इज नॉट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और फिर उसको छोड़ दे। लेकिन जे बोर्ड को ये भी पावर दी गई है कि वो बच्चे के बारे में कुछ आदेश जारी कर सकता है, बच्चे के पिता के बारे में उसे फाइन के आदेश कर सकता है, बच्चे को एडमोनिशन और एडवाइस देकर के छोड़ा जा सकता है, घर भेजा जा सकता है, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी बच्चे को छोड़ सकते हैं, ग्रुप काउंसलिंग या अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के शर्त के साथ भी छोड़ा जा सकता है, बच्चे को कम्युनिटी सर्विस करने के लिए भी आदेश दिया जा सकता है, और बच्चे को अगर वो पाते हैं कि उसका स्पेशल होम या जेल में प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखना जरूरी है तो वहां के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। बच्चे को देते हुए बड़ी जिम्मेदारी जे बोर्ड पर की गई है कि वो बच्चे को फाइनली उसका केस डिसाइड करते हुए
उसकी एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाए और उस केयर प्लान को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जो है, उनके साथ अपने सुपरविजन में उनको इम्प्लीमेंट, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब थोड़ा सा हम लोग जेजे बोर्ड के लिए हमने ब्रॉडली फंक्शंस देखे। इन जेजे बोर्ड के फंक्शंस में थोड़ा क्रिटिकल एक पार्ट ये आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जेजे बोर्ड पे बहुत सारी है और ये एक पिवोटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी जो सोशल वर्कर्स हैं, जो और हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट, कोलैबोरेट करती है। लेकिन इसका जो मैन पावर स्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इसके फंक्शंस हैं, मल्टीफेरियस फंक्शंस हैं, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज हैं। एक तो इसकी मैन पावर ऑगमेंटेशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये पाया कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, वो प्रॉपर्ली एसोसिएटेड नहीं है जेजे बोर्ड के साथ। तो वो अपने जो सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल उसका अपग्रेडेशन है बच्चे का, उस लेवल के फंक्शंस को जेजे बोर्ड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम लोग भी अभी स्टडी कर रहे हैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको हम इंटीग्रेटेड नहीं है इसके साथ। फिर जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन पे जो कंट्रोल है वो परवेसिव नहीं रह पाता ड्यू टू मैन पावर कंट्रोल और ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वो प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज नहीं हुआ। वहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर एक बच्चा एक जगह दूसरे बच्चों को इफेक्ट कर रहा है तो हम उसे कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बनाए गए। तो जो एक्ट की मंशा है, जो एक्ट के उद्देश्य है, वो उस क्लस्टर ऑब्जर्वेशन होम या सेफ्टी होम में पूर्ण नहीं हो रहे। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि जेजे बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो, और जेजे बोर्ड का जो कार्य है बहुत ही नोबल कार्य है, बहुत बड़ा ही नोबल कार्य है, लेकिन इसमें ये थोड़ी डिफरेंस हम लोगों ने पाई। एंड वी थैंक यू फॉर लॉ मिनिस्ट्री फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद देम एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस। थैंक यू।